All India Radio Houston. There you can watch the previous interviews and other interesting clips. We have more than 300 videos covering various aspects of Indian experience here in Houston and from around the world. So please visit YouTube and subscribe to All India Radio Houston page so we can keep you updated as to the latest additions to our video blog. Ladies and gentlemen, welcome to Nick Nickham Network Talk Show. I am Dr. Nick Nickham, and we're going to take a little break and we're going to talk about the National Association of Bengali Conference, which is going to be held on July. I'm trying to find a date here. July 10th to 12th here at the George Orban Convention Center and Hilton Americas. So please contact the National Association of Bengali Conference, and IAA, Indo-American Association, is bringing Shobnas Krishna, an English dance drama which is going to be played out on May 22nd, 2015 at 8 p.m. at the Vardham Center, and you can contact IAAHouston.com or Maharani Music for your tickets, and hope to see you there. And later on, hopefully, we will have Mohit Khan join us and talk about Sean live in concert with Little Champs. And in the meantime, we're going to start our second segment, which is going to be about Ayurvedic medicine. And my special guest is Dr. K.B. Singh. Dr. Singh, welcome to Nick Nickham Network. We are delighted to have you. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, give us a little bit about your background. Yes, basically I am from UP, Yeah, Meerut, yeah. and then I moved to Delhi in 1968 Achha, when yeah. I was in 7th grade. Yeah, really, yeah, तो then मेरा हायर के सेकेंडरी एजुकेशन वहीं पे हुआ, yeah, और उसके बाद अहिंसा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में ही था उस समय, आजकल तो गवर्नमेंट ने उसको yeah. टेक ओवर कर लिया है, उससे मैंने ग्रेजुएट किया, Achha, yeah, बैचलर डिग्री BAMS, yeah. देन मैंने MD किया मेडिसिन में, अच्छा, yeah. और उसके बाद PhD किया. Oh, बहुत अच्छा. लेकिन सारा मेरा जो मीडियम था वो संस्कृत था. अच्छा, संस्कृत का. संस्कृत था. ओ, आयुर्वेदिक मेडिसिन सब संस्कृत जी में हाँ, teach करा एक्चुअल था. बेसिकली जितना भी बड़े हमारे ग्रंथ हैं, आयुर्वेद जो ग्रंथ है हमारा, Yeah. वो संस्कृत में ही है. अच्छा, संस्कृत. हाँ. लेकिन अभी फिर उसको हिंदी वर्जन भी बना दिया है, आजकल तो इंग्लिश में भी Yeah. बुक्स आ गई हैं, लेकिन जो मीनिंग जी हाँ. और जो डायग्नोसिस Yeah. और जो उसका विकृति और प्रकृति उसके अंदर दिया है संस्कृत में, अच्छा. हाँ. उस जैसा Yeah. जो व्याख्या उसमें की गई है, ऐसा इंग्लिश में नहीं है. नहीं मिलेगा. अच्छा. अच्छा. Ladies and gentlemen, we are talking about Ayurvedic medicine, and my special guest is K.B. Singh. If you'd like to call in here and ask any questions, the number is 281-745-4161. You are listening to us on 1050 KCHN. You can also listen to us on kchnradio.com, and my special guest is Dr. K.B. Singh. अच्छा, आप कितने साल से अमेरिका में हैं? मैं 2003 में यहाँ पे आया था, अच्छा, या, और मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करी 2004 से. या. आपका प्रैक्टिस लोकेशन और इन्फॉर्मेशन कांटेक्ट नंबर दे दीजिए. जी, अगर कोई लोग पूछना अगर हो किसी को भी या, कंसल्टेशन करना है या फ्री कंसल्टेशन करना है, मैं एल्डरली पीपल के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ, अच्छा, okay. और जितना संभव हो सकता है उनको मेडिसिन भी मैं फ्री अवेलेबल करवाता हूँ. हाँ, बहुत अच्छा बात है. तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है या, 713-449-5265. या, ये मेरा सेल नंबर है, तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जी हाँ. क्योंकि ऑफिस है, मैं 2 जगह जाता हूँ. अच्छा, या, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडियो शुगरलैंड में है, अच्छा, विलियम ट्रेस और हाईवे 6 पे. अच्छा, या, दूसरा मैं ऑन कॉल जाता हूँ अच्छा, या, केरला आयुर्वेदिक सेंटर मर्फी रोड, अच्छा, या, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. या, लेकिन मैंने आपको सबसे आसान तरीका डायरेक्ट मैंने अपना सेल नंबर दे दिया है. या, अच्छा,
अगेन 713-449-5265। अच्छा, थोड़ा हमको बता दीजिए आयुर्वेदिक मेडिसिन और इंग्लिश मेडिसिन में क्या फ़र्क है? डॉक्टर निकम, इसमें बहुत फ़र्क है, Yeah. जैसे ज़मीन और आसमान। अच्छा, इतना दूर? इतना दूर है क्योंकि केमिकल्स Yeah, हायर लेवल पे, समझिए आकाश है वो आसमान है, yeah, और हमारी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, फूल पत्ते, जितनी ज़मीन औषधियाँ होती है वो ज़मीन में होती हैं। हाँ, तो इसी वजह से मैंने बोला है आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। yeah, तो हम सब जितनी भी औषधियाँ होती हैं, yeah, ये सब हमारे जो, जैसे हम मसाले खाते हैं, जी हाँ, वो सब हमारी yeah, औषधियाँ हैं। yeah, तो और जो आपकी जो Yeah. मेडिसिन है, एलोपैथिक जो मेडिसिन है, वो सब केमिकल्स पे है, केमिकल्स बेस है, Yeah. लेकिन हम लोग का केमिकल बेस नहीं है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और एक बात, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये डिसीज क्यों होता कर को आप बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक क्यों का सवाल है, या ये सब खान पान पे निर्भर करता है। अच्छा, या आप क्या खाते हैं, कैसा आपकी दिनचर्या है, या किस तरह का भोजन खाते हैं। वो एक कहावत है कि आप Yeah. जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल उगेगी। या तो क्रॉप्स भी वैसे ही होगी जिस तरह का आप सीड डालेंगे। अच्छा, या अगर आप गन्ना शुगर केन उगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर कॉर्न खाएंगे। या तो जिस तरह से आप अपना खान पान रखेंगे, उसी तरह से आपकी बॉडी में Yeah. वो चीज़ें डेवलप होंगी। अगर आप ख़राब खान पान रखते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाते Yeah. हैं, तो विकृति शरीर में होना लाजमी है। अब जैसे बहुत आप, मुझे भी बड़ा शौक़ था, मैं बहुत घी खाता था, सब्जी और दाल में बिना घी के मैं या खा ही नहीं सकता था। जी हाँ। लेकिन एक एज होती है, सर्टेन एज तक आप Yeah. कुछ भी खा सकते हैं, वो हर चीज़ डाइजेशन, क्योंकि Yeah. जठराग्नि जो होती है, जिसको हम भूख कहते हैं, हाँ, जो पाचन शक्ति होती है, जो हमारा नेवल, जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, या वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। अच्छा, या और इसको हम फायर प्लेक्सस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई, या बहुत फ्राइड, बहुत तेज़ मसाले वाली चीज़ें खाएंगे, तो ऑब्वियसली आप जब मॉर्निंग से में effect जाएंगे, होगा। तब आपको पता चलेगा क्या Yeah. इफ़ेक्ट होता है। आपके पेट में जलन भी हो सकती है, इंटेस्टाइन भी आपकी डैमेज हो सकती है, उसमें अल्सर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा तला हुआ खाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जी हाँ, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ सकता है, जो आर्टरीज़ को रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है। या ये सब कम से कम मॉडर्न मेडिसिन के भी यही हम बात करते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। शक्कर ज़्यादा खाए तो डायबिटीज़ हो जाता है, नमक ज़्यादा खाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यस, वो देखिए डॉक्टर साहब, जो डायग्नोसिस होते हैं ना, Yeah. डायग्नोस तो एक ही होता है, या बीमार तो एक ही होता है। बीमार तो एक ही है। अब मान लिया एलोपैथिक में किसी को हार्ट की बीमारी है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, इसको तो ब्रेन ट्यूमर है। या तो ये ठीक है। या तो डायग्नोस तो एक ही होता है, चाहे वो आयुर्वेद है या एलोपैथ है, जी हाँ। लेकिन वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। ट्रीटमेंट अलग होती है। जैसे आपके एलोपैथिक मेडिसिन में सपोज पेन किलर कोई दे रहे हैं, तो Yeah. एक पेन किलर सबको काम कर जाता है, या लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। जरूर अच्छा। नहीं है कि जो डिजीज़ आपको हो हाँ और दूसरे को भी वही सेम डिजीज़ हो, या तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ट्रीटमेंट भी एक ही अच्छा, हो, yeah. उसमें ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। जरूर जरूर। या Ladies and gentlemen, you are listening to Nick Nickham Network Talk Show. We are talking about the differences and comparisons between Ayurvedic medicine and allopathic medicine. And I've been a cardiologist for 35 years, and Dr. Singh has been an Ayurvedic specialist for a number of years. And if you'd like to join in the conversation, the number to call here is 281-745-4161. Okay, and okay, आप पहले जब हम बात कर रहे थे, बता रहे थे आयुर्वेदिक डिसीजेस में कफा, पिता और हवा जी, का ये प्रकृति होती इस है। बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, ये प्रकृति होती है। या जैसे मेन जो मुख्य 3 प्रकृति होती हैं आदमी की, या वात, पित्त एंड Yeah. कफ। अच्छा, वात एक्चुअल जो ये अपभ्रंश है, वाता कफ एंड पित्ता, Yeah. इंग्लिश में जैसे
योग होता है लेकिन उसको योगा बोलते हैं। अच्छा, या दैट्स नॉट योगा। या YOGAA योगा होता है, ना अच्छा। कि YOG। ओ अच्छा, या तो ये इसी तरह से वाता, पित्त और कफा जी हाँ, ये विकृति हैं, इस अपभ्रंश है, जबकि वात, पित्त और कफ होता है। अच्छा, या व्हाट, या अब जैसे मैं आपको बता दूं कि पित्त और कफ या शांत होते हैं। जैसे पतझड़ आता है या तो पत्ते पड़े होते हैं पेड़ के नीचे, अच्छा, या लेकिन जब वायु तेज होती है हवा तो सबको, हवा जब तेज होती है तो उसको उड़ा के ले जाती है। ओ अच्छा, उसी तरह से ये दोष हमारे शरीर में बीमारी का काम करते हैं। हाँ, जैसे वात और पित्त शांत हैं पतझड़ Yeah. के पत्तों की तरह, या लेकिन जब वायु का वेग होता है हाँ, तो शरीर में विकृति पैदा होती है। सो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत इन तीनों तकलीफ हो चीज जाती का है। कॉम्बिनेशन। अब उसमें यह है कि अगर आपका पित्त ज़्यादा है और Yeah. वायु भी कुपित है तो आपको एसिडिटी होगी, हाँ, रिफ्लैक्स होगा, आपको हाँ, खट्टी डकारें आएंगी, डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। या अगर वायु ही कुपित है या तो आपको जॉइंट्स पेन होगा, जिससे अर्थराइटिस, रूमेराइटिस, ये सारे जॉइंट्स पेन होते हैं। अच्छा, और वायु और पित्त और कफ जब तीनों दोष होंगे तो जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, ओ जो इम्यून डिसीजेस, इम्यून डिसीज, यस, और वो मसल्स को आपको पेन करेंगी, या जिसमें आई थिंक सो कि एलोपैथिक में शायद इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, वो या जब तक आदमी जिंदा रहता है तो दवाई खाता रहता है। या जैसे ब्लड प्रेशर है, Blood pressure, इसमें भी हमेशा arthritis, खाएगा, अर्थराइटिस इसमें भी, डायबिटीज, लेकिन डायबिटीज़ है, लेकिन Yeah. आयुर्वेद में इनका 100% इलाज है, अच्छा, बशर्ते कि या आदमी या पेशेंट फॉलो अप करे, या डायरेक्शंस फॉलो अप करे कि Yeah. आपका डॉक्टर क्या बोल रहा है, उसको आप अगर कंटिन्यूसली उसी तरह से नहीं फॉलो अप करेंगे, मान लिया मैं बोलता हूँ आपको कि आपको जॉइंट पेन है तो आपको नींबू नहीं खाना है, Yeah. टमाटर नहीं खाना है, हाँ, और आप जाके कि नहीं यार आज तो क्या है, चलो चाट बना लेते हैं, टमाटर भी काटा, फल काटे, नींबू निचोड़ लिया, तो उससे ऐसा इलाज संभव नहीं है। वो खाने को अच्छा लगता है ना। हाँ, खाने को अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने के बाद जो होता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ladies and तो gentlemen, जैसे you are listening to Nick Nickham Network Talk Show. We are talking about Ayurvedic medicine and allopathic medicine, and my special guest is Dr. K.P. Singh, who is an Ayurvedic specialist. If you have any questions, you can call us at 281-745-4161. अच्छा, एक मिनट हम ब्रेक लेंगे और Ladies and gentlemen, please visit All India Radio Facebook page Yeah. and like it. Here we bring you news, information, calendar of events, and interesting stories from around the world, round the clock. So please visit All India Radio Houston page on Facebook and like it. Thank you. अच्छा, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कुछ बता दीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में वो किधर से आता है और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करता है? ओके, और पहले तो पुराने ज़माने में तो क्या होता था या कि वैद्य जी जाते थे खुद या जंगल में, उनको बहुत पहचान होती थी क्योंकि वन औषधियाँ बहुत होती थी जो जंगल में खड़ी होती थी। या वहाँ से अपने आप उनको लाते थे, साफ़ करते थे। पहले मोस्टली काढ़ा बनाया जाता था, उबाला जाता था, या ड्राई करके, जब मौसम में जो एक औषधि होती है जैसे ब्रह्मी होती है, तो ब्रह्मी का अभी ये मौसम है, या समर में होती है, Yeah. तो उसको लाके, और ब्रह्मी सपोज इलाज के लिए हमें 12 महीने चाहिए तो उसको सूखा लेते थे, पाउडर बना लेते अच्छा, थे। या लेकिन आजकल युग बदल चुका है, जी हाँ, मॉडर्न लोग हो गए हैं, या तो आजकल सब मशीनों से बनता है, या और वो सब लाके जो एक्सट्रैक्ट है या डायरेक्ट जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको लाके ग्राइंड करके उनको कैप्सूल फॉर्म में बना देते हैं, टैबलेट्स में बना देते हैं।